নমস্কার। ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশের উদ্যোগে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আজকে এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী নেতৃত্ব আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যিনি আছেন, যার জন্য আমরা দীর্ঘ প্রতীক্ষায় আছি, আজকে এই সোনামুড়াবাসী তথা ত্রিপুরা রাজ্যবাসী আপনাদের কাছে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রীজি, মান্যবর সবার প্রিয় মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। ওনার এই বক্তব্যের প্রাক মুহূর্তে আমি দীর্ঘ সময় নেব না। উনি যেটা বলেন, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, ধর্ম যার যার, উন্নয়ন সবার, ধর্ম যার যার, প্রগতি সবার, ধর্ম যার যার, দেশ সবার। আমরা ওনার কাছে রাজ্যবাসীর হয়ে একটা আবেদন রাখব, যেভাবে উনি ভারতবর্ষের মধ্যে একটা প্রগতিশীল রাজ্য, যাকে ভারতবর্ষের উন্নয়নের চরম শিখরে যে রাজ্য আছে, শ্রমিক খেটে খাওয়া মানুষ দলতন্ত্র আর দলতন্ত্রের চাপে তাদের নাবিশ্বাস উঠে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী এই মহকুমা থেকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। উনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছিলেন, রাজ্যে ৮০,০০০ বেকার ছিল, আজকে ৮ লক্ষ বেকার। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি 25% বেকার ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই। কর্মচারীরা 4th পে কমিশনের পরে আর কোনো পে কমিশন পায়নি। 5th পে কমিশন, 6th পে কমিশন, 7th পে কমিশন পায়নি। এই রাজ্যটা কর্মচারী নির্ভরশীল অর্থনীতি। রাজ্যের কৃষকরা বিপর্যস্ত। 85% কৃষক আজকে আধ পেট খেয়ে আধ নাঙ্গা অবস্থায় আছে। রাস্তায় রাস্তায় অন্যে হয়ে বেকাররা ঘুরছে। আমাদের এই সুন্দর ত্রিপুরা, আমাদের এই মা ত্রিপুরেশ্বরীর ত্রিপুরা, এই ত্রিপুরাকে আমরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরায় পরিণত করতে চাই। আমরা এটাকে মিনি গুজরাট করতে চাই। আমরা উন্নয়নের জন্য আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা চাই। আগামী দিনে কমিউনিস্ট শুধু কংগ্রেস মুক্ত ভারতবর্ষ হলে চলবে না, কমিউনিস্ট মুক্ত ভারতবর্ষ চাই। সেটা আপনারা যেভাবে বেরিয়ে এসেছেন এই ছোট্ট মহকুমায়, আমি সবাইকে আবারও আমার হৃদয় থেকে আপনাদের প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমার সহস্র সহস্র প্রণাম জানিয়ে আমার ছোট্ট দুটো কথা এখানেই শেষ করলাম। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। চলো পাল্টাই, চলো পাল্টাই, চলো পাল্টাই। নমস্কার। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আইপিএ
शिबाय, कहामदे तोंगबाय, त्रिपासारो, त्रिपुरा हस्तनी, जोतो लोकोरोकोनो, आणि हम जगमाते खा, कहाम या फारो। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और इस चुनाव में सोनामुरा से उम्मीदवार श्रीमान सुबल भौमिक जी, टकरजाला से उम्मीदवार श्रीमान एनसी देव वर्मा जी, बागमा से उम्मीदवार श्री रामपत जमातिया जी, चारीलाम से श्रीमान जिष्णुदेव वर्मा जी, आरकेपुर से श्रीमान प्रणजीत सिंह रॉय, धनपुर से सुश्री प्रतिमा भौमिक, राजनगर से श्रीमान विभीषण चंद्र दास, गोला घाटी से श्रीमान वीरेंद्र किशोर देव वर्मा, बेलोनिया से श्रीमान अरुण चंद्र भौमिक, हशामुर से श्रीमान अशेष वैद्य, जुलाई बारी से श्रीमान अंकीय मोक चौधरी, सुखरूम से श्रीमान शंकर रॉय, कागराबान से श्रीमान जितेन मुजुमदार, ओमपी नगर से श्रीमान सिंधु चरण जमातिया, माताबारी से भाजपा उम्मीदवार श्रीमान विप्लव कुमार घोष, शांति बाजार से श्रीमान प्रमोद रियांग, बॉक्सो नगर से बहारुल इस्लाम, नरचर से सुभाष चंद्र दास, मेरे साथ सब बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद हिंदुस्तान में और खास करके दिल्ली में किसी को अंदाज भी नहीं होगा कि त्रिपुरा में कैसी क्रांति आ रही है। एक प्रकार से त्रिपुरा सच्चे अर्थ में अपने हकों के लिए ये चुनाव लड़ रहा है। ये चुनाव भाजपा या भाजपा के साथी दल नहीं, ये त्रिपुरा की जनता चुनाव लड़ रही है। अपने हकों के लिए चुनाव लड़ रही है।
यहां का नौजवान रोजगार के लिए चुनाव के मैदान में आया है। यहां का सरकारी मुलाजिम सातवां पगार पंच, सेवंथ पे कमीशन की मांग को लेकर के आज उठ खड़ा हुआ है। पूरा त्रिपुरा विकास की नई ऊंचाइयों पर जाना चाहता है और इसलिए मैदान में उतरा है। और ये चुनाव, एक तरफ सरकार है, नाम भी सरकार, हाथ में भी सरकार, और दूसरी तरफ जनता जनार्दन है। और इतिहास गवाह है, जब जन सामान्य मैदान में उतरता है, जब जनता का मिजाज बदलता है, तब अच्छे अच्छे सरकारों को उखाड़ करके फेंक देता है। और इसलिए मैं साफ देख रहा हूं, अब त्रिपुरा में विकास का युग आने वाला है। और इसीलिए आप लोगों ने हमें सिखाया है, आपने हमें सिखा है, चलो पुलटोई, चलो पुलटोई, चलो पुलटोई। भाइयों बहनों, हमारे देश में 51 शक्तिपीठों का हर कोई पुण्य स्मरण करता है। एक श्री यंत्र अधिष्ठात्री देवी, देवी त्रिपुरा सुंदरी, ये उसी का स्थान है। मैं इस धरती को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, जब हम त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा के हर नागरिक के हृदय में यहां के भूतपूर्व महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य, वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी, जिन्होंने त्रिपुरा के कल्याण के लिए, देश की एकता के लिए, यहां के लोगों के विकास के लिए, बंटवारे से बचने के लिए जिस प्रकार से दीर्घ दृष्टि से काम लिया, ये हम सबका दुर्भाग्य रहा कि आजादी आने से कुछ ही दिन पहले महाराजा हमें छोड़ करके चले गए। लेकिन महारानी जी ने सरदार पटेल के साथ बात करके, गांधी जी से बात करके त्रिपुरा को बचाने का बीड़ा उठा लिया। और इसलिए मैं ऐसी महान परंपरा, देश के लिए कुछ कर दिखाने वाली महान परंपरा, उसको भी आज नमन करना पसंद करूंगा। भाइयों बहनों, पिछले 20-25 साल से एक ऐसी माया जाल की रचना की है। हम बंगाल में तो एक जादूगर सरकार का नाम सुनते थे, लेकिन यहां एक छुपा हुआ जो जादूगर सरकार है, ऐसी
ऐसी माया जाल बना के रखी है, ऐसी माया जाल। देश में किसी कोने में यहां की बर्बादी, बुरे हाल का पता तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा। लोगों को उनका बैंक अकाउंट और सफेद कुर्ता यही दिखाया गया, लेकिन अंदर कितने काले कारनामे पड़े हैं, इससे देश को अंधेरे में। और इसलिए ये समय की मांग है कि त्रिपुरा को इस अंधकार युग से बाहर लाना है। त्रिपुरा को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना। ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हिंदुस्तान के किसी भी कोने में एक लाल झंडा हो, एक, और अगर उस कारखाने में अगर मजदूर को रुपया थोड़ा कम मिलता है, 2-5 रुपया भी, तो उस पूरे कारखाने को ताला लगा देते, हड़ताल कर देते, जीना मुश्किल कर देते। आप मुझे बताइए, क्या त्रिपुरा में मिनिमम वेजेज मिलते हैं क्या? मिलते हैं क्या? देश के नागरिकों को जो मिलता है वो आपको मिलता है क्या? ये बोलना और दिखाना और करने में अंतर है कि नहीं है? अंतर है कि नहीं है? इन्होंने आपके साथ धोखा किया है कि नहीं किया है? क्या देश में और लोगों को जो मिनिमम वेजेज मिलता है वो त्रिपुरा के लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहाँ के मजदूर को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहाँ खेत पे काम करने वालों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहाँ दुकानदार के यहाँ काम करने वाले को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलता है? देशवासी, ये त्रिपुरा में कम्युनिस्ट 25 साल से बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ के नागरिकों के एक भी मान्य अधिकार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और बातें देश में बड़ी बड़ी कह रहे हैं। आप मुझे बताइए, महंगाई बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी? महंगाई के हिसाब से ये जो हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, उनको तनख्वाह मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आईएएस को मिले, आईपीएस को मिले, क्योंकि वो भारत सरकार की योजना में आता है। लेकिन क्या कारण है कि त्रिपुरा में पैदा हुआ, त्रिपुरा में सरकार में काम करने वाला, 15-15, 20-20 साल से काम करने वाला, सरकार कहे बाएं जाओ तो बाएं जाए, सरकार जो कहे वो करे, उसके बावजूद भी उसको हक के पैसे नहीं दिए जाना, ये अपराध है कि नहीं? ऐसी सरकार को अपराध की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या इस चुनाव में कमल निशान पर बटन दबाकर अपराधियों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? इनको बिस्तरा बोरिया लेकर के उखाड़ करके फेंक दोगे कि नहीं फेंक दोगे? और तब जाकर के चलो पलटाए होगा कि नहीं होगा? तब जाकर के चलो पलटाए होगा कि नहीं होगा? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, 96 के बाद मुझे बताया गया कि कोई नया वेतन में सुधार ही नहीं हुआ है। ये दिल्ली में इनके जो जुड़े लोग हैं ना, वो इन चीजों को बाहर नहीं आने देंगे। और ये आपके साथ अन्याय चलता रहेगा। 7th पे कमीशन लागू क्यों नहीं किया जा रहा? देश के किसी कोने में सरकार ने नहीं किया होता तो ये लाल झंडा लेकर के निकल पड़ते और वहां पर आग लगा देते लोग। लेकिन 20-20, 25-25 साल से सरकार में बैठे और यहां का मुलाजिम भी इतना डरा हुआ है, इतना दबा हुआ है
कि 96 के बाद पे रिवीजन न मिलने के बाद भी बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा, तो भी बूढ़े माँ बाप की बीमारी में दवाई कराने के लिए सुविधा नहीं है, तो भी चुपचाप बैठा है, क्योंकि उसे मालूम है अगर कुछ भी बोलने जाएगा तो उसको जीवन भर से नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, ऐसा भय बना के रखा है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर के यहां के सभी सरकार के मुलाजिमों को 7th पे कमीशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप बताइए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उनको हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने आपको वादा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने आपको वादा किया है कि यहां पर सभी मुलाजिम, देश में मजदूरों के लिए जो मिनिमम वेजेज है वो त्रिपुरा के लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिनिमम वेजेज हर गरीब को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी वादा करती है देश में जो मिलता है वो त्रिपुरा के मजदूर को भी मिल के रहे। यहां पर लोकतंत्र शब्द सिर्फ चुनाव में बटन दबाने के लिए काम में आता है, और उसमें भी जैसा जुल्म किया जाता है चुनावों में, चाहे केरल हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे त्रिपुरा हो, जहां जहां यह लाल झंडा पहुंचा है, उसने लोकतंत्र को अपने लिए उपयोग करना, अपने तरीके से तोड़ना मरोड़ना और लाठी से ही लोकतंत्र को चलाना, ये परंपरा खड़ी की है। और त्रिपुरा में भी आप मुझे बताइए, त्रिपुरा सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जान हथेली पर लेकर के निकलना पड़ता है कि नहीं निकलना पड़ता है? ये लोग जुल्म करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे गरीब आदमी को डांटते हैं कि देखो तुम्हारे गांव में से वोट नहीं मिला तो तेरा राशन कार्ड गया। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? मैं आपको बताता हूं, अब हमने कंप्यूटर पे सब लिख करके रखा है, इनकी कोई ताकत नहीं है कि आपकी कोई छीन सके। भाइयों बहनों, आज भी त्रिपुरा में अगर 100 रुपये का खर्चा होता है तो 100 रुपये में से 80 रुपया दिल्ली सरकार से आता है, भारत सरकार से आता है। लेकिन यहां पर पैसे मिलने के बावजूद भी या तो पैसों का खर्च नहीं होता है या तो पैसों का हिसाब नहीं मिलता है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये रोजवेली क्या था भाई? क्या था भाई रोजवेली? त्रिपुरा के गरीबों को लूटा गया कि नहीं लूटा गया? लाखों परिवारों को तबाह कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया? रोजवेली के कारण यहां के लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी? और रोजवेली से कमाई किसकी हुई? किसकी हुई? किसकी हुई? किसकी हुई? इनको सजा देनी है कि नहीं देनी है? अरे रोजवेली में जो गरीबों का लूटा गया है और जिन्होंने मिली भगत करके लूटा है, उनको भाइयों बहनों ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो ताकि
फिर से कभी गरीब का 1 रुपया छीनने की कोई हिम्मत न करे। भाइयों बहनों, आज देश के नौजवानों का रोजाना रहना है, मां बहनों को सम्मान की जिंदगी देनी है, बुजुर्गों का ख्याल करना है, तो त्रिपुरा का विकास किए बिना होने वाला नहीं। और इनके रहते हुए, क्योंकि उन्होंने पार्टी सरकार सब एक कर दिया, किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस थाने में जाने से पहले ये लाल सलाम वालों के घर जाना पड़ता है, उनको चढ़ावा देना पड़ता है, तब जाकर के एफआईआर लॉन्च होती है। पुलिस वाला भी कहता है कि आपकी शिकायत सही है, लेकिन पहले वहां से जरा परमिशन लाइए, वहां से मैसेज करवा दीजिए, तब काम होगा। आपका राशन कार्ड का हक है, लेकिन जब तक कम्युनिस्ट पार्टी उस पर सिक्का नहीं मारती है, आपको राशन कार्ड नहीं मिल सकता। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये गुलामी का नया रूप है कि नहीं है? ये लोगों को गुलामी में रखने का नया कांड है कि नहीं है? और इसलिए भाइयों बहनों, हम विकास की चर्चा लेकर के आए हैं। हमारा मंत्र रहा है ट्रांसफॉर्मेशन बाय ट्रांसपोर्टेशन। अच्छी सड़कें हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, यहां के लोगों को अपने सपने पूरा करने के लिए सुविधाएं हो, और इसलिए हमारी सरकार ने, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब एक बहुत बड़ा फैसला, और वही फैसला एक है जो आज भी हमारे उत्तर पूर्व के राज्य, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, इनके कल्याण करने का आधार बना। उन्होंने अलग डोनर मंत्रालय बनाए और हर भारत सरकार के मंत्रालय को कहा कि आपका जो बजट है उसमें से 10% आपको नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए खर्च करना पड़ेगा। ऐसा महत्वपूर्ण फैसला किया। हमारी सरकार ने आकर के एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया, क्योंकि हमारा मत है जब तक कि भारत का पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इनका विकास अगर नहीं होगा तो देश का विकास असंतुलित होगा, देश का भाग्य नहीं बदल सकता। देश का भाग्य तब बदलता है जब त्रिपुरा का भाग्य बदले, तब जाकर के देश का भाग्य बदले। और इसलिए हमने त्रिपुरा के विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाई। ये लोग ये भी झूठ फैला रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी, ये बंद हो जाएगा, ढीकना बंद हो जाएगा, फलाना बंद हो जाएगा। अरे बीजेपी की सरकार तो 4 साल से दिल्ली में बैठी है, आपका कोई हक छीना गया क्या? आपकी कोई योजना बंद की क्या? ये झूठ क्यों फैला रहे हो भाई? क्यों फैला रहे हो? और एक झूठ का भी जवाब देना पड़ेगा। भाइयों बहनों, उनके मंत्रियों पर कैसे कैसे आरोप लगे हुए, और बीजेपी सरकार आएगी तो उनको डर है कि बचने के लिए जाए तो जाए कहां। भाइयों बहनों, कहते हैं कि जब कोई ग्रहयोग खराब होते हैं तो जो उस पर विश्वास करते हैं वो अलग अलग रंग के पत्थरों की अंगूठियां पहनते हैं ना। लेकिन अगर गलत पत्थर वाली अंगूठी पहन ली
तो फिर हालत और बुरा हो जाते हैं, जो होते हैं वो भी बुरे हो जाते हैं। और इसलिए त्रिपुरा ने गलत माणिक पहन लिया। जब तक आप ये गलत माणिक नहीं उतारोगे, आपका भाग्य नहीं बदलेगा। और इसलिए ये माणिक ऐसी अंगूठी आपने लगा दी, ऐसा पत्थर जड़ दिया और 25 साल से जड़ के रखा है। दिल्ली में कितनी सरकारें बदल जाए, तारे आसमान में बदल जाए, ग्रह बदल जाए, सूरज इधर चले, चंद्र इधर चले, सब हो, लेकिन ऐसा पत्थर चिपका हुआ है कि आपको उसका अच्छे दिन का भी फायदा नहीं पहुंच सकता। और इसलिए अब आपको माणिक नहीं चाहिए, माणिक से मुक्ति ले लो। अब आपको जरूरत है हीरे की। हीरा चाहिए, हीरा। हीरा चाहिए कि नहीं चाहिए? हीरा चाहिए कि नहीं चाहिए? हीरा चाहिए कि नहीं चाहिए? और जब मैं हीरा कहता हूं तो मेरा सीधा सीधा अर्थ है, हीरे का H मतलब हाईवे, I मतलब हाईवेज, डिजिटल कनेक्टिविटी, R मतलब रोड। भाइयों बहनों, A मतलब एयर। हाईवे, हाईवे, रोडवे, एयरवे, ये हीरा चाहिए त्रिपुरा को, जो त्रिपुरा को नई चीजें। और हम आपका माणिक जाएगा, हीरा आएगा, जो आपका हीरा हो। और इसलिए भाइयों बहनों, पूरे इस इलाके के कनेक्टिविटी के लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं। भाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सरकार ने हाल ही में नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम को मंजूरी दी और इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब 100 के 100% 100% भारत सरकार की तिजोरी से पैसा मिलेगा। और उसके लिए सरकार ने करीब 5,300 करोड़ रुपया लगाने का फैसला किया है। भाइयों, आपका ये सकल सूरत बदलेगी नहीं। भाइयों बहनों, और इसमें वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, कनेक्टिविटी, जिसके कारण त्रिपुरा के जो सामान्य जीवन है, ईज ऑफ लिविंग की बात है, उसको बल मिले। भाइयों बहनों, त्रिपुरा में हम हीरा लेकर के आए हैं और साथ साथ त्रिपुरा का टी, ये त्रिपुरा के टी के साथ और 3 पर हम बल देना चाहते हैं। और वो 3 है ट्रेड, टूरिज्म और नौजवानों को ट्रेनिंग। ये 3T, एक तरफ हीरा इंफ्रास्ट्रक्चर और ये 3T जो जीवन में अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने का एक बहुत बड़ा काम करेंगे और उस काम को लेकर के हम आए। भाइयों बहनों, पिछले 3 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल नेटवर्क के विकास के लिए वार्षिक तौर पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए।
त्रिपुरा में सभी मीटर गेज एक्सटेंशनों को हमने ब्रॉड गेज में परिवर्तित कर दिया है। अगरतला अब देश की राजधानी नई दिल्ली के साथ रेल मार्ग से जुड़ गया है। एक नई राजधानी त्रिपुरा की आवश्यकताओं को पूर्ण कर रही है और दिल्ली के साथ सीधी कनेक्टिविटी दे रही है। अब त्रिपुरा के लिए दिल्ली दूर नहीं है। भाइयों बहनों, त्रिपुरा के अंदर सड़कों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में हमारे आने के बाद त्रिपुरा को न्याय मिले, इसके लिए हमने पीड़ा उठाया और 80% से अधिक बढ़ोतरी हमारी दिल्ली में सरकार बनने के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई। सरकार ने 1700 करोड़ रुपए की लागत से करीब 125 किलोमीटर रोड के 3 प्रोजेक्ट नए उस पर काम शुरू कर दिया है। भाइयों बहनों, 128 करोड़ रुपए की लागत से सबरूम में फेनी नदी पर पुल का निर्माण भी हमारी योजना में शामिल है। भाइयों बहनों, हमने आने वाले 3 वर्षों में 11,000 करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट के लिए कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी, इसके लिए लगाने की दिशा में हमने काम किया। अगरतला का एयरपोर्ट 450 करोड़ रुपए लगा करके अगरतला का टर्मिनल बिल्डिंग कि उसके निर्माण की हमने मंजूरी दे दी है। आप कल्पना कर सकते हो त्रिपुरा की शान कितनी बढ़ने वाली है। भाइयों बहनों, हम एक उड़ान योजना लाए। उस उड़ान योजना के तहत हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में जा सकता है। इतना सस्ता कर 2,500 रुपये में यात्रा की व्यवस्था और जिसका सबसे ज्यादा लाभ नॉर्थ ईस्ट को मिलने वाला है, त्रिपुरा के दूर सुदूर इलाकों को मिलने वाला है, यहाँ के नौजवान को मिल रहा है। भारत के अंदर नए नए एयरपोर्ट बनाना और सीधी कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आसानी से मिल जाए, उस दिशा में हमने काम करा है। भाइयों बहनों, आजकल की दुनिया ऐसी है कि एक बार अगर टेलीफोन की कनेक्टिविटी छूट गई तो ऐसा लगता है दिन चला गया, जैसा सब खो गया। मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी के लिए वो बेचैन हो जाता है, क्या चलता क्यों नहीं? ऐसा होता कि नहीं होता है? भाइयों बहनों, हमारा नौजवान तो आजकल सब चीज उसी में देखता है, दुनिया की खबरें भी उसमें देखता है, अपनी आवश्यकता भी उसी से ढूंढता है, पढ़ाई के लिए पेपर भी उसमें से मिल जाते हैं, जो भी उसको सजेशन चाहिए वो भी उसमें मिल जाते हैं। और इसलिए पिछले साल फरवरी में अगरतला स्थित इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे IIG और BSNL के लिंक पर हमने ट्रैफिक आरंभ कर दिया। कॉक्स बाजार बांग्लादेश, उस रास्ते से हमारे पड़ोसी देशों से दोस्ती बना करके काम होता है। इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे पाने वाला ये त्रिपुरा, ये हमारा अगरतला देश का तीसरा शहर है। ये सौभाग्य मुंबई को मिला, चेन्नई को मिला
और अगर तीसरा किसी को मिला तो ये आपके अगरतला को मिला। कोई कल्पना कर सकता है कि दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है कि जिसको सिर्फ मुंबई और चेन्नई नहीं, अगरतला भी याद आता है और यहां पर वो सुविधा देता है जो मुंबई और चेन्नई को देता है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया। आप हैरान होंगे, दिल्ली में बैठ करके जो सरकार चलाते थे, इनको हमारे उत्तर पूर्व के प्रदेशों का कुछ भी ज्ञान होता, थोड़ी सी भी संवेदना होती, त्रिपुरा की जिंदगी में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसकी समझ होती, तो मेरे देश में आजादी के 70 साल बाद भी बांबू काटने पर रोक। मेरा गरीब आदिवासी त्रिपुरा के जंगलों में बांस उगाता है, खुद का घर बना करके बांस काट करके करना है तो भी नहीं कर सकता है। कारण दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने जो त्रिपुरा को क्या चाहिए क्या नहीं, नॉर्थ ईस्ट को क्या चाहिए क्या नहीं समझ नहीं, और इसलिए उन्होंने जो बांबू घास की श्रेणी में आता है उसको पेड़ की श्रेणी में डाल दिया और सारे जंगलों के कानून उस पर रखे। हमारी सरकार ने आपकी अर्थव्यवस्था का आधार बिंदु जो बांबू है, हमने उसको पेड़ की कैटेगरी से निकाल करके ग्रास की कैटेगरी में डाल दिया। अब आप बांबू का उपयोग काट सकते हैं, बेच सकते हैं। और दूसरी तरफ देश अगरबत्ती बनाने के लिए बांबू बाहर से लाता है। बताइए, क्या ये हक हमारे त्रिपुरा के लोगों को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? यहां की रोजी रोटी में काम आना चाहिए नहीं आना चाहिए? लेकिन उनको पता ही नहीं है कि देश के किस कोने में कौन चीजों की जरूरत है, और इसलिए गलत निर्णय करते हैं। और हम इस बात को बढ़ाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं खेत के कोने पर भी लोग बांबू उगाएं, देश की आवश्यकता के अनुसार बांबू हो। और इसलिए हमने इस बार बजट में नेशनल बांबू मिशन इसकी रचना की है और 1300 करोड़ रुपया का बजट इस बांबू के लिए लगाने का तय किया है। अभी मुझे इतनी बढ़िया सौगात भेंट दी गई, कितना उत्तम काम त्रिपुरा के लोगों ने बांबू के ऊपर किया है। ये ताकत है दुनिया के अंदर, हम नाम रोशन कर सकते हैं हमारी इस कला के द्वारा, और इसलिए हम लोग उसकी दिशा में काम करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, त्रिपुरा की सरकार उस पर जो दाग लगे हैं उस दाग से कभी बचने वाली। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश, और उन विविधताओं को बचाना, उन विविधताओं का सम्मान करना, उन विविधताओं का विकास करना, ये देश के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। जंगलों में रहने वालों की अनेक विविधता है, विशेषताएं हैं। आदिवासियों की अनेक विविधताएं विशेषताएं हैं। समाज की भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों की विविधता विशेषता है। हमारा प्रयास है कि त्रिपुरा में भी परंपरागत रूप से जो विविधता वाले समूह हैं, उनकी परंपराओं की रक्षा हो, उनका गौरव बढ़े और देश को उसकी पहचान हो, उसके लिए विशेष रूप से प्रयास करने का निर्णय भी हमारी सरकार करेगी और दिल्ली सरकार पूरी मदद करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। भाइयों बहनों, ये लोग अगर आपको धमकी देते हैं कि अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो राशन कार्ड चला जाएगा, आप हमें वोट नहीं दोगे तो आधार कार्ड चला जाएगा, आप लिख के रखो, आपका कुछ नहीं चला जाएगा,
ये धमकी देने वाले चले जाएंगे, ये धमकी देने वाले चले जाएंगे। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करने आया हूं, इस चुनाव में आपके दिल की जो आवाज है, जो आपके रगों में दौड़ रही है, जिस बात ने आपके दिलो दिमाग को गर्म करके रखा है, जो आपका मंत्र बन गया है, जो आपका नारा बन गया है, वो सिर्फ जनसभाओं में नहीं, वो पोलिंग बूथ के अंदर जाकर के वोटिंग मशीन में से निकलना चाहिए। बटन दबा करके निकलना चाहिए। चलो पलटाई, वो उस मशीन में से आवाज आनी चाहिए, चलो पलटाई। जैसा ही बटन दबाओगे तो आपकी आत्मा सुनेगी, हाँ अब मशीन भी बोल रहा है, चलो पलटाई। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, त्रिपुरा के उज्जवल भविष्य के लिए ये जो माणिक जड़ा हुआ है, उससे निकालकर हीरा धारण कर लो और 3T के द्वारा स्टेट टूरिज्म और ट्रेनिंग के आधार पर हमारे त्रिपुरा को नए विकास की ऊंचाई पर ले जाओ। इसी अपेक्षा के साथ दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए और पूरी ताकत से बोलिए, 25 साल पुरानी सल्तनत को उखाड़ के फेंक देना है भाई, लोकतांत्रिक तरीकों से फेंक देना है, जुल्म करने वालों को जाना पड़ेगा। इस विश्वास के साथ चलो पलटाई का नारा लेकर के चलना है। और इसलिए मैं आपसे नारा बुलवाता हूं, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की।